فقیر اعظم تو امیر حرم، میں فقیر اعظم تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی وہ مجھ پر کم درود پڑھے یا زیادہ، تو آئیے کم سے کم ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين صلاة سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالیشان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ۔ جس کا معنی اور مفہوم اس طریقے سے ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کا، جس کاموں کا کرنے کا حکم دیا، وہ کام ہمیں کرنا ہے، اور جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ محترم حضرات، آئیے میں آپ کو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا معنی اور مفہوم اس طریقے سے ہے کہ علماء محققین یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء دین جو ہے برحق حق پہ، شریعت پہ چلنے والے عالم دین جو ہے وہی نبی کے وارث ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک سست عالم سمجھتے ہیں، وہ صرف 5 وقت کا نماز پڑھ لیا، باقی وہ اپنے عیل و عیال کے فکر میں لگا، باقی کچھ کرتا نہیں، نہ لوگوں کو تقریر کرتا ہے، نہ کہیں اور کوئی کام کرتا ہے، بس وہ صرف 5 وقت کا نماز پڑھ لیا، سست، یعنی وہ دوسرا کوئی کچھ کرتا نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک سست عالم کا سونا سمجھتے ہیں، وہ سو گیا، اور ایک عبادت گزار کا عبادت کرنا، ایک عبادت گزار نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو جتنا نیکیاں مل رہی، لیکن ایک سست عالم اس نے صرف فریضہ انجام دے کے سو گیا، اس کے ہر دھڑکن کے بدلے اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم باعمل سے مصافحہ کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہاں پر بات ختم نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے عالم باعمل کی زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء محققین یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ بے شک۔ تو اب یہ
ان کی تعظیم کیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑا عبادت گزار ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کے صبح اپنے گھر سے نکلا، مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیا، عصر کا ناشتہ بھی چھوڑ دیا، مغرب کا ناشتہ بھی چھوڑ دیا، رات کا کھانا بھی چھوڑ دیا، رات کو تہجد بھی پڑھا، پھر فجر کی نماز پڑھا، پڑھ کے اس نے کسی مسلمان کے قبرستان پر گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا۔ اب جتنا پڑھے گا اتنا ہی قبرستان والے کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن ایک بچہ ہے مدرسہ میں پڑھتا ہے، گھر سے آیا، کہاں سے آیا؟ گھر سے آیا صبح 8 بجے، اس نے سنی مدرسہ میں پڑھا، اور پھر اس کے ایک دوست نے کہا کہ بیٹا میرے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، چلو قبرستان جاتے ہیں۔ اب اس نے اس کو قبرستان لے کر چلا گیا، کس کو؟ مدرسہ میں پڑھنے والے بچے کو۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو علماء فرماتے ہیں کہ خالی صرف مدرسہ کے پڑھنے والا بچہ جب قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں سے یعنی 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو اٹھاتا ہے کس کے جانے پر؟ ارے بولیے، طالب علم جو علم سیکھتا ہے، جب ایک بچہ علم سیکھ رہا ہے، وہ اگر کسی مسلمان کے قبر سے گزر جائے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردے کو عذاب نہیں دیتا۔ تو جب ایک مدرسہ کے بچہ سیکھنے والا، علم سیکھنے والا جب جائے تو جب اس کے جانے میں اتنا فائدہ ہے، جو سکھاتا ہے مولانا، سبحان اللہ۔ ارے بولیے، جو مولانا سکھائے اگر وہ کسی قبرستان سے جائے تو اس قبر کا معاملہ کیا ہوگا؟ لیکن ہم نے محدود رکھ دیا، ہم نے مولانا کو اپنا جاگیر غلام سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ آج قوم ذلیل و خوار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک بچے کا ظاہری پر نظر کون رکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ۔ ایک بچے کے ظاہری پہ نظر اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اس کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے اس کے باطنی پہ نظر استاد رکھتا ہے، بے شک، اور اس کے کمائی کھانے کے لیے دوست احباب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اب دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بڑی سے بڑی مشکلوں کو حل کر دیتی ہے، بڑی سے بڑی مشکلوں کو حل کر دیتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، فتویٰ رضوی میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بڑھ کے زیادہ استاد کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ سے بڑھ کے زیادہ استاد کا حق ہوتا ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو پہلے ماں باپ کی جو اہمیت ہے میں بتاؤں۔ نبی کا زمانہ ہے، ایک صحابی تھے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد انسان یعنی جو آتا ہے وہ اپنے زبان سے نکالتا ہے۔ تو وہ صحابی پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کے بارگاہ میں التجا کی، مولا میرا یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا، حور کے پریشانی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے منت مان لی۔ منت کیا تھی؟ جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا، حور کے پیشانی کو چوموں گا۔ ان کا منت ماننا تھا، کچھ دن کے بعد وہ کام ہو گیا، وہ پریشانی دور ہو گئی۔ جب پریشانی دور ہو گئی تو اب وہ دوڑے دوڑے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے۔ حوالہ نوٹ کرنے والے حوالہ نوٹ کر لو، الہدایہ اور نہایہ اور کتاب ہے جو درس نظامی عالموں کو پڑھایا جاتا ہے نا مدرسے میں، اس میں ایک کورس کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک باقاعدہ نقل کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے حدیث کو تلاش کرو گے تو ملے گا۔ تو وہ صحابی نبی کے بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اچانک میرے زبان پر ایک منت آ گئی کہ میرا یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں
जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा और दूर के पेशानी को बोसा दूंगा, मेरा वो काम हो गई है। तो मन्नत पूरा करना वाजिब है। मन्नत मानने के बाद में मन्नत पूरा करना क्या है? वाजिब है। नहीं पूरा करोगे गुनहगार। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक मोमिन समझते ना जन्नती, जहन्नमियों नहीं, मुनाफिक नहीं। मोमिन ने सलाम किया, या सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो एक मोमिन ने दूसरे मोमिन को सलाम किया, तो जिसने सलाम किया उसने सुन्नत अदा की, और जिसको सलाम किया उसको जवाब देना वाजिब है। क्या है? जवाब देना वाजिब है। अगर उसने जवाब देने में थोड़ा सा लेट कर दिया, जैसा कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में नियत बांधने के बाद में सना पढ़ी गई, सना के बाद में सूरह फातिहा पढ़ा गया, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा गया, उसके बाद में एक सूरा मिलाया जाता है। तो अब वो सूरा मिलाने में हम सोच में पड़ गए, बोले अलग तरफ पढ़ेंगे, एक सूरह रहमान पढ़ेंगे या सूरह मुल्क पढ़ेंगे। ऐसे सोचते सोचते इतना देर हुई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 3 बार सुभान अल्लाह कहने के मिक़दार देर हो गई। तो अब उस नमाजी को चाहिए नमाज पूरा करके तो इस्ता सजदा करे, सजदा सब करे, क्योंकि उसने वाजिब का तर्क किया। उसने क्या किया? वाजिब का तर्क किया, क्योंकि सूरा सोचने में उसने 3 बार सुभान अल्लाह के मिक़दार वक्फा किया। तो ये वाजिब का तर्क है, क्योंकि फौरन अल्हम्दुलिल्लाह के बाद में फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरा मिलाना था, तो उसने सोचने में ताखीर कर दी, तो इसके लिए उस पर वाजिब तर्क हो गया। अब उसको तो सजदा जरूरी है, नहीं करेगा तो उसकी नमाज ही हुई नहीं। तो उसी तरह एक मोमिन ने दूसरे मोमिन को सलाम किया और कितना देर उसने ताकीद कर दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद में अगर उसने जवाब दी, जवाब तो हो गई लेकिन उसमें तौबा लाजिम हो गई, तौबा भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तौबा भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जवाब देने में लेट किया, गुनहगार हो गया। तो उसी तरीके से मोहतरम हजरात, तो अब मेरे आका के बारगाह में वो सहाबी पहुंचे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा तो मन्नत पूरा हो गया, तो अब मैं उसका पूरा करना, वो काम हो गया, मन्नत पूरा करना वाजिब है। तो या रसूल अल्लाह ऐसा मन्नत माना हूँ, जन्नत कहाँ है, पूर कहाँ है, तो पूरा कैसे करूँगा? तुमने ऐसा मन्नत माना था। हाँ। तो मेरे आका मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। देखो कुरान में एक आयत करीमा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला अपने बंदों को उनसे ताकत से ज्यादा बोझ देना नहीं चाहता, ताकत से ज्यादा बोझ देना नहीं चाहता। अब इन्होंने परेशानी के आलम में मन्नत मान ली। अब जब मन्नत मान ली तो मन्नत पूरा करना भी तो है ना। तो अब मन्नत इतना भारी मन्नत थी, तो वो अपने आप को भारी मन्नत में उतार नहीं सकते, तो इसीलिए रसूल का वसीला लिया। तो नबी के बारगाह में जब पहुंचे, नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये मन्नत ही दुनिया में पूरा हो जाएगा। तो लिहाजा तुम जाओ अपने घर जाकर माँ के कदमों को चूमो, जन्नत के दरवाजे को चूमने का बराबर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। किसके कदमों को चूमो? माँ के कदमों को। नबी कह रहे हैं माँ के कदमों को चूमो, रसूलुल्लाह कह रहे हैं माँ के कदमों को चूमना सवाब है, मन्नत पूरी हो जाएगी। ये कतमुल्लाह कहता है कि सिर के है, तो रसूलुल्लाह का मानोगे कि यानी कतमुल्लाह का मानो? अरे बोलते क्यों नहीं? रसूलुल्लाह के मानना है ना, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वातिउल्लाह वातिउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह और उसके रसूल की। लेकिन आज रसूल का हुक्म मानता कोई नहीं है, कतमुल्लाह का जरूर मानते हैं, कतमुल्लाह का जरूर मानते हैं, क्योंकि उसमें तो बिरयानी मिलती है। खैर बचना चाहिए। तो अब मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने क्या फरमाया कि माँ के कदमों को चूमो और अब्बा के पेशानी को बोसा दे, तुम्हारा मन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का फरमान है, ये किसी मुल्ला का फरमान नहीं है। तो अब वो सहाबी अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप तो मर गए, दुनिया में है नहीं, तो क्या करूं? मेरे नबी ने फरमाया फिर भी घबरा
घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। जाओ, तुम्हारे माँ बाप जिस कब्रिस्तान में दफन है तो उनके कब्र को चूम लो, तुम्हारा मन्नत पूरा हो जाएगा। हाँ, हवाला के साथ बता रहा हूँ, अल हिदाया व निहाया किताब हो तो देख लेना। नबी ने क्या फरमाया, कब्रिस्तान में जाओ, जाके तुम्हारे माँ के कब्र को चूम लो, बाप के कब्र को बोसा दे दो, तुम्हारा मन्नत। ये अभी सब बारात आएगी ना, हम लोग जाएंगे कब्र में तो कुछ ऐसे कतल्ला है, क्या कहेंगे, फिर के अभी तक मोमबत्ती जलाना हराम है, अगरबत्ती जलाना, मच्छर बत्ती। अरे बोलिए, अगर अगरबत्ती जलाना हराम है तो कछुआ बत्ती जलाना क्या है, गोबर से बना हुआ है। मच्छर भगाने के लिए तुम कछुआ जलाओ, तुम्हारे लिए जवाब यानी जो है जाई, हम खुशबू पहुंचाने के लिए, दिल को मुतमईन करने के लिए, फरिश्तों को हाजिर लाने के लिए अगरबत्ती जलाए तो नाजायज। अरे नाजायज अगर कहना हो तो कल नाजायज करार देना अपने बच्चों को, ये फुलझड़ी फराके फुटाना नाजायज है, ये हमारे बाप का त्योहार नहीं। अरे बोलिए, इसमें किसी वहाबी देवबंदी का फतवा नहीं निकलेगा। हाँ, निकलेगा तो 11वीं शरीफ पे फतवा निकलेगा, निकलेगा तो मिलाद शरीफ पे फतवा निकलेगा, निकलेगा तो यानी मुहर्रम के सबील पे फतवा निकलेगा। उस वक्त कहाँ चले जाते हैं करने, अभी कहाँ चले गए? ये जो अभी मुसलमान के इलाके में ढोढ़ा हो रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के तरीका अपनाया जा रहा है, तो क्या वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते नहीं? अगर हकीकत में वो इब्राहिम सुन्नत इब्राहिमी पे चलने वाले होंगे तो जरूर कल फतवा निकालेंगे। गए मुसलमानों, इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्चे करने वाला शैतान का भाई है। यानी फुलझड़ी पर आग लगाना जैसा, पैसे पे आग लगाना जैसा है किसी के अंदर में ताकत। क्योंकि जाहिर बात है कि जब वो हराम का खाते पले थे तो वो हराम ही को जायज करार देंगे, हलाल को कब जायज करार देंगे। खैर, आला हजरत गया तो मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र को, माँ के कब्र को चूम लो, तुम्हारा मन्नत पूरी। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप जिस कब्रिस्तान में दफन है ना, बहुत वर्षों से दफन हुए, अब वो कब्र का निशान भी मुझे पता नहीं। अल्लाह अकबर, क्या फरमाया, क्या उन्होंने लिखा कि कब्र का निशान मौजूद नहीं है, न जाने उसी कब्र पे कितने और मुर्दे दफन हो गए होंगे। तो मेरे आका ने फरमाया, इसका दो हदीस रवायत है, दो रिवायत मजबूर है। क्या है? एक रिवायत है कि अपने घर के आंगन में एक छड़ी लेकर ऐसा लीठी पार के कोई मेरे अब्बा का कब्र, दूसरा लीठी पार कर कोई मेरे अम्मा का कब्र, और उसको बोसा दे दो। जब तुम्हें कब्र ही नहीं, लेकिन तसव्वुर करो ये मेरे अब्बा का, तो वो अब्बा का कब्र हो गया। ये नबी फरमा रहे हैं, कोई बरेली का मौलवी नहीं। बरेली का मौलवी जो कहता है जो नबी ने कहा उसी को बताता है। तो ये मेरे अब्बा का कब्र, ये मेरे अम्मा का कब्र, उसी को बोसा दे दो। और दूसरी रिवायत में, जाओ किसी भी मौमिन के कब्र पे चले जाना, किसी भी मौमिन के कब्र पे चले जाना। इसीलिए हर सुन्नी शब बरात में सुहाग गाता है, सुभान अल्लाह। वो मौमिन का कब्र है, वहाँ पर अल्लाह के वली का मजार भी है। इसीलिए मुसलमान सुन्नी बरेली कुतुब आलम दरगाह पे जाता है, ये मौमिन का कब्र है। इसीलिए साया आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हाथ देते हैं, मौमिन का है। तो मेरे नबी ने फरमाया, किसी भी मौमिन के कब्र पे जाके किसी भी कब्र को चूम लो, तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये है माँ की अहमियत, ये बाप का अहमियत। तो लिहाजा माँ जो है बच्चे के जाहिरी पे नजर रखती है, लेकिन माँ के साथ मोहब्बत से पेश आने से बड़ी मुश्किल टल जाती है। ये तो माँ की अहमियत है, लेकिन उस्ताद का अहमियत सुनो। उस्ताद की अहमियत ये है कि अगर आप कोई पेचीदा मसला में फंस गए हो, अगर उस्ताद की ताज़ीम और तौकीर करो तो अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद के ताज़ीम और तौकीर के सदक़े में तुम्हारे पेचीदा मसला को हल कर देगा। सुभान अल्लाह। इसी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे जिनके नाम महमूद गजनवी। शैतान उनके दिल में एक बात डाल दी, बोले तू ओरिजिनल बाप का है या तू हरामी है। वो सोचते थे बादशाह थे, लेकिन दिल में शैतान ने क्या डाला कि तू ओरिजिनल है या नहीं।
हमेशा वही सोच में रहती है, मैं ओरिजिनल हूँ या नहीं, मेरे माँ तो कोई मुँह काला किया नहीं, किसी से मेरा माँ मुँह तो काला नहीं किया, यही सोच में रहती थी। लेकिन वो सोच कभी हकीकत में बदलती नहीं। एक दिन महमूद गजनवी बादशाह अपने शाही लश्कर में सवार होकर रात के वक्त में वो गश्त कर रहे थे। अब रात अंधेरी थी, जब बादशाह का सवारी निकलती है तो एक रोशनदान के आजू बाजू होता है और एक सामने सिपह सालार रोशनदान लेके आगे होशियार खबरदार, बादशाह का तशरीफ आवरी है, वो होता है कि ऐलान होता है, तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करके रोशनदान लेके जा रहा है। बादशाह की सवारी में चारों तरफ लाइटिंग लगे हुए हैं। इत्तेफाक ऐसा था कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा गरीब बच्चा जो मदरसा में पढ़ता था, गरीब था, लेकिन वो रात को जो शाही किला होते हैं ना, किला के हर तरफ यानी जो है लाइट होती है, तो अब उसके घर में चिराग नहीं, गरीब है, तेल लाएगा कहाँ से? तो वो रोज क्या करता, मदरसा से आने के बाद में खाना वाना खा के उस शाही किला के जो हेलोजन लगे होते थे लाइट, तो उसमें वो क्या करता, अपना किताब याद करता, फजर जाके मदरसे में मौलाना को सुनाएगा। तो जब वो शाही सवारी गुजरी, महमूद गजनवी बादशाह जब सवार होके चले तो बात यानी ये लड़का ना देखा, बोले कि बहुत ज्यादा उजाला है, अभी यहाँ से 3 दरवाजा तक बादशाह की सवारी जाएगी, चलो मैं चलते चलते पढ़ते पढ़ते जाऊंगा, मेरा सबक भी याद हो जाएगा। पहले के जमाने के बच्चे को पढ़ाई से कितनी मोहब्बत, अभी तो मतलब कि जो है इतना बड़ा बड़ा रजवी टोपी लगा लिया, पगड़ा बांध लिया, 4 रास्ते पे बैठ कर जिसकी कीमत उसके यानी कीमत उसके लड़की की तरफ ताक खाक उसके ये क्या मैं मदरसा में पढ़ता हूँ, ये आज का मामला। खाने में हराम खाएंगे, चोरी करेंगे, दगाबाजी करेंगे, है कि नहीं, और क्या ना बोले मैं फला मदरसा में पढ़ता हूँ, और बेचारे भोले भाले मुसलमान भी जो है उनका हाथ चूमते हुए नजर आते। मदरसा का बच्चा है, ताज़ीम नबी ने फरमाया मेहमान रसूल है, लेकिन मेहमान रसूल के अंदर वो यानी गलत है कि नाम तो मेहमान रसूल का रखा है, काम जो है गद्दार रसूल का करता है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से भी परहेज करना चाहिए। तो अब वो बच्चा पढ़ता हुआ चला, अब शाही दरवाजा खुली और महल में कहीं अंदर तक गाड़ी चली गई, तो ये बच्चा भी उसके अंदर चला, दरवाजा लग गया। अब जब दरवाजा लग गया, बादशाह जब वो अपने महल के ऊपर चढ़ा, ये बच्चा अब रास्ता तलाश कर रहा है, मैं घर जाऊंगा कैसे, घर जाऊंगा, इधर से उधर भाग रहा, इधर से उधर भाग रहा। बादशाह की नजर पड़ी, अपने वजीर को कहा जा रहे ये कौन बच्चा है, तो हमारे किसी सिपाही का तो बच्चा दिखता नहीं, ये कौन बच्चा, उसको पकड़ के लाओ। तो वजीर ने उस बच्चे को पकड़ा, पकड़ के बादशाह के पास लेकर गया। बच्चा घबराया हुआ था, बोले कि घबराने की जरूरत, हकीकत बताओ। बोले मैं फला मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा बाप गरीब है, मजदूरी करता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो चिराग दे मुझे, तो मैं अपना सबक याद करूँ, मैं फला मदरसा में पढ़ रहा हूँ, तो मैं हर रोज आपके ये किला के जो लाइटिंग है उसमें सबक याद करता था। तो आज आपकी सवारी गुजरी, तो मैंने कहा कि चलो पीछे पीछे याद करता चला जाऊं। तो मैं पढ़ने के धुन में आपके सवारी के पीछे पीछे आपके महल के अंदर आ गया, मुझे पता नहीं है। बादशाह ने कहा मदरसा में पढ़ते हो? हाँ। तो उसने बहुत ताज़ीम की बच्चे, उसको खाना खिलाया, शाही खाना खिलाया, और वजीर को हुक्म दिया कि जो हमारे आगे जो ऐलान करने वाला जो रोशनदान जो लेके जा रहा था वो सोने का था। सुभान अल्लाह। बोले कि इसको तोहफे में दे दो, सुभान अल्लाह, ये रोशनदान तोहफे में दे दो, उसको कह दो कि तेरा जी चाहे इसको बिक्री कर दे या तेरा जी चाहे तो इससे यानी रोशन करके किताब पर जा बेटा। तो इतना बादशाह ने मदरसे के बच्चे के साथ एहसान किया, उसी रात को सोया तो उसकी तकदीर समझ गई। तकदीर कैसे चमकी जानते हैं? रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महमूद गजनवी के ख्वाब में आए, सुभान अल्लाह, और कहने लगे ऐ सबकतगैन के बेटे, सुभान अल्लाह। महमूद गजनवी के ओरिजिनल बाप का नाम क्या है? सबकतगैन, लेकिन इनको शक था कि मेरा बाप कोई और तो नहीं है, मेरा मां ने मुताला तो नहीं किया है, यही शक तो था ना। और दूसरी सवाल यह है कि कयामत कायम होगी कि नहीं होगी। यानी दूसरे कटमुल्ला ने अफवाह उठा के बोले दुनिया में ही है, आखिरत में कयामत का माजल्ला कोई नहीं, और जो ये दुनिया में नेक अमल का जजा और सजा हुआ मिलेगा कि 3
एहसान किया तो नबी ने ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि ऐ सुबुतगैन के बेटे, तुमने हमारे मेहमान की ताज़ीम की, कल कयामत के दिन इसका सिला हम तुम्हें अदा करेंगे। बादशाह की नींद खुली कि मैं जो वर्षों से जो मसला में उलझा था, एक तालिबे इल्म पर एहसान करने के बदले में अल्लाह के प्यारे रसूल ने मेरे वो मसला को सुलझा दिया। सबसे पहली बात, मेरा माँ कोई खताकार नहीं, मैं ओरिजिनल सुबुतगैन का बेटा हूँ। और दूसरी बात, कयामत जो है वो जजा और सजा का दिन है। जब मैंने इस बच्चे के साथ में एहसान किया, मेरे नबी कयामत के दिन उस एहसान का बदला चुकाएंगे, मुझे जन्नती बनाएंगे। क्या किया चला कि जब एक मदरसा के बच्चे के साथ में एहसान करने में तो पेचीदा मसला हल हो जाता है, तो फिर जो बच्चे को पढ़ाता हो, आलिम दीन की ताज़ीम करने में कितना अल्लाह उसके रसूल राजी होंगे, वो यानी जो है अल्लाह जाने, उसके बताए से रसूल जाने। लेकिन आज हमारा किरदार, हमारा अकीदा क्या है? एक शायर कहता है कि आने लगी पास जो दौलत हराम की, आने लगी जो पास दौलत हराम की, आदतें भूल गए हम एहतराम की। अरे भूल गए कि नहीं भूल गए? जब हराम का दौलत आएगा तो अदब और एहतराम भूल गए। गुस्ल व वजू के दिन को फराइज नहीं पता, गुस्ले वजू के दिन को फराइज नहीं पता, खामियां निकालने लगे वो अपने इमाम की। एक जमाना ऐसा था, यही मस्जिद अज़िया में नमाजी का ठाका मारता मजमा, जुमा के दिन ढाबा ऊपर कभी कम होता, और जिनको वजू का तरीका मालूम नहीं, गुस्ले का सलीका मालूम नहीं, तो अब वो कतराने लग गया। अरे भाई, जाहिर बात है कि जहाँ क्या है, यहाँ वहाँ यानी दोनों जहाँ, ये मेरे नबी की हुकूमत है। कहाँ भाग के जाओगे नजदियो, तेरा उनके हाथ लगा, मुंह मोड़ के जाओगे, ये समझ लेना कि तुम आला नसब के हो। मुंह मोड़ दो तो हम मतलब कि जो है कामयाब हो जाएंगे, नहीं कामयाब हो सकते। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान, वो अपने बाप से मुंह मोड़ा, जब घर के होने लगा तो दुआ कर रहे थे, मौला मेरे बेटा है बचा ले, तो अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हारा नाफरमान है वो घर के होगा, उसके लिए दुआ मत करो। अरे दूसरी बात है, अभी इसी टिया मस्जिद के इलाके का वाक़या है कि कोई शायद भी अपने आप को सैयद कहते थे, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक उन्होंने देवबंदी के मस्जिद में नमाज पढ़ने लग गए, क्योंकि वो ज़कात फितरा सदका मिलता। सबसे पहली बात जो है, सैयदों को ये सब खाना मना है, ज़कात फितरा ये सब जो है लेना जायज़ नहीं है। अब अल्लाह आलम वो कौन थे आना थे, वो तो अल्लाह जाने, वो जाने। लेकिन 2 साल तक उन्होंने देवबंदी की सोबत इख्तियार की, और जब मरे ने कब्र पे जब उनको लिटाया गया, उनका चेहरा टुकड़ा से चेहरा मीडिया की तरफ हुआ नहीं। लोग कहने वाले, अभी मैंने सुना मतलब अखबारी पहले कि लोग कहने वाले कहते हैं जब वो मरे थे, क्योंकि अपने मोहल्ले के इमाम से उन्होंने चेहरा फेरा था, मोहल्ले के इमाम से क्या फेरा था, तो अल्लाह ताला ने कब्र में ही उनका चेहरा तो फेर दिया, किबला की तरफ चेहरा हुई नहीं। ये नसब का काम आई नसब उसी वक्त काम आएगी कि जब ईमान सलामत हो। नसब उसी वक्त काम आएगी जब अकीदा बरकरार रहे। यार अकीदा में अगर खड़बड़ है तो फिर समझ लो कि सब गड़बड़ है। तो लिहाजा इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी भी करीम न। आज एक और हवा चली है कि अगर कोई औलादे गौ से पाक का मुरीद बन जाता है ना, बोले कि मैं भी सैयद हो गया, मेरा हाथ छू, हाँ मैं भी। अरे भाई सैयद का तुमने दामन पकड़ा है, तुम सैयद नहीं हो। सैयद का दामन पकड़े हो तो वैसा ही तो फिर किरदार भी करो आला हजरत जैसा। आला हजरत जब सैयद के दामन पकड़ने के लिए गए
एक पठान गए, जब जाके सैयद का दामन से वाबस्ता हो गए तो वो सैयद साहब कहते हैं कि ऐ खान साहब, तुमने मेरे दामन पकड़ा, मेरी उलझन दूर हो गई। पूछेगा कि आए आले रसूल तू क्या लाया है, मैं इमाम अहमद रजा को पेश कर दूं। क्या चला कि वो सैयद होते हैं, वो अपने मुरीद पे नाज करते हैं। लेकिन सुनो मुसलमानों, उस्ताद का सबसे बड़ा अदब को एहतराम दुनिया में भी कामयाबी की दलील है, आखिरत में भी कामयाबी। अरे गौसे आदम सैयद है या नहीं? गौसे आदम जो है दुनिया में आके वली बने या पैदा होते ही वली थे? अरे बोलिए, वली थे ना, माँ के पेट में थे, करामत ताजी। माँ के पेट में अम्मी जाते सेब तोड़ने के लिए, सांप बैठा हुआ है तो पेट से देख रहे कि अगर वो सेब तोड़ेंगे तो सांप काट लेगा, तो पेट के अंदर में जिक्र शुरू कर रहे थे, अल्लाह का नारा लगाते हैं। माँ का पेट दुखने लगा, फौरन बैठ गए, मुझे लेके चलो घर चले गए। एक दिन हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अम्मी जान घर में है, एक शरीर फकीर समझते हैं ना, भीख मांगने वाला, और यानी जिसको मतलब कि जो है भीख मांगने वाला, वो भीख मांगने के लिए आया और देखा कि घर में कोई मर्द नहीं है, तो हजरत गौसे आजम के अम्मी जान ने जैसा ही खैरात देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने बुरी नजर रखकर उनके कलाई को पकड़ा। जैसा ही कलाई को पकड़ा तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अम्मी जान घबरा गए कि अभी तो कोई है नहीं, ये ऐसा न कि मेरे इज्जत पे हाथ डाले। इतने में क्या करते हैं कि एक शेर बबर आया और उस फकीर को फाड़ कर मार दिया, हलाक कर दिया। ऐसी बात खत्म हो गई। मेरे गौसे आजम पैदा हो गए, दुनिया में तशरीफ लाए, रमजान का महीना है, पहले रमजान को पैदा हुए। जब जाहिरी तरीके से बोलने लगे, एक दिन अपने अम्मी से कह रहे हैं, ओ मेरी अम्मी जान, हर माँ का एहसान अपने बच्चे पे है और मैं वो बच्चा हूँ, मेरा एहसान तुम पे है। मैं वो बच्चा हूँ, मेरा एहसान तुम पे है। ऐसा कैसे तुम पे है? ना, हाँ, एक बार मेरे नाना के सेब के बागीचा में मैंने एहसान किया था, पेट के अंदर रह के तुम्हें सांप कटवाने से बचाया था। और दूसरी बात, अपने घर में जो याद करो, वो फकीर आया था, बदचलन फकीर, जब उसने बुरी नजर डाली थी, एक शेर आके तुमको यानी जो है उसको हमला किया था ना, वो कोई शेर नहीं, वो वही था। भाई मुसलमानों सुनो, मेरा गौस पैदा होते ही पैदाइशी वली है। अल्लाह ताला ने मेरे गौसे आजम को के रूह को बनाया, वलायत की रूह बनाया, ऐसी नहीं। लेकिन जानते हैं गौसे आजम में जिलान में पैदा हुए, अब बगदाद में कितने साल रहे? 25 साल। काय के लिए बगदाद गए थे? हाँ, बोलो काय के लिए गए थे? बोली तो थे। और हम जैसे कादरी को सिखाने के लिए कि चाहे कितना बड़ा वली हो जाए, जब तक वो अपने उस्ताद का अदब नहीं करे तो उसका वलायत कोई काम में आएगी नहीं। गौसे आजम सैयद है, लेकिन 25 साल अपने उस्ताद की खिदमत की है, तब गौसे आजम बने हैं, तब बड़े पीर बने हैं। ऐ मुसलमानों, कादरी दामन पकड़ने के बाद में अपने आप को फूले में समाओ, पहले मेरे गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलो, मेरे गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलो, तब तुम्हारा सिलसिला कामयाब होगा। गौसे आजम का तरीका क्या है? 25 साल उन्होंने अपने उस्ताद की खिदमत की है, उस्ताद का बिस्तर उठाया है, उस्ताद को वुज़ू के लिए पानी दिया है, उस्ताद को इस्तिंजा कराया है, तब आज बड़े पीर के नाम से मशहूर हो गए। खाली कादरी दामन पकड़ लिया ना, मेरा हाथ चूमा, पहले हाथ तो ऐसा खुशबूदार बनाना, रातों दिन हाथ में हराम का लुकमा लेता है, फिर कहता कि मेरा हाथ चूमा, रातों दिन देवबंदी से मुसाफा करता है, फिर कहता है कि मेरा हाथ चूमा। नहीं प्यारे, गौसे आजम के निस्बत को पकड़ लेने से कोई सैयद नहीं होता है। सैयद के लिए मेरे नबी के बेटी फातिमा के नसब से हसनी हुसैनी होना जरूरी है, हसनी हुसैनी होना जरूरी है, अली के औलाद होना जरूरी है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सैयदों का ताज़ीम हम सुन्नियों के लिए कल भी था, आज भी है, ता क़यामत तक रहेगा। कोई सुन्नी सैयदों का ताज़ीम नहीं करता है, वो सुन्नी नहीं बल्कि सुन्नी है। यही वजह है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन तकरीर के लिए जा रहे थे। एक गरीब सैयदजादे जो बिल्कुल बासरा थे, हरामखोर नहीं थे, देवबंदी से रिश्तेदारी रखने वाले नहीं थे,
सिजाओं के बेटी के साथ में निकाह करने वाले नहीं थे, लेकिन थे सैयद थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जैसा ही पालकी में आला हजरत बैठते हैं, उनके खुशबू से पता चल गया कि ये पालकी चलाने वाला कहार जो है सैयद है। खुशबू से चेहरा बता रहा है आले रसूल है, खुशबू बता रहा है जन्नत के फूल है। तो जैसा ही आला हजरत ने खुशबू से पहचान लिया कि इसमें मेरे नबी का कोई आल है, नबी का कोई आल, फौरन पालकी से उतर गए, अर्ज करने लगे तुम्हें उसी नबी का वास्ता, कौन है सैयद? न भाई तुम्हारा काम से मतलब नहीं, तुम्हें बताना होगा, नहीं तो कल क़यामत के दिन अगर मेरे नाना पूछे, अगर तुम्हारे नाना पूछेंगे, रसूल आजम पूछेंगे कि क्या मेरे सैयद मेरे औलाद का तुम्हारे यानी बोझ उठाने के लिए थे, तो उस वक्त क्या बनेगा? तो एक सैयद जादे कहे कि मैं गरीब हूँ, नया नया इलाके में आया था, कोई पहचानता नहीं, कहारों से दोस्ती कर ली थी, मेहनत मजदूरी करके मैं काम कर रहा हूँ। तो आला हज़रत ने अपना अमामा उठा के उनके कदमों में रख दिया, सुभान अल्लाह, उनके कदमों में रख दिया। किनके कदमों में? जो ओरिजिनल सैयद थे, जिनसे खुशबू आ रही थी नबी के। बोले कि मुझे माफ कर दो। बोले इसमें गलती क्या है? ना माफ कर दो, जो थोड़ा देर के लिए मैं बैठ गया ना, माफ कर दो। तो उन्होंने माफ कर दी। बोले कि इसका कफारा भी मुझे देना होगा। न कफारा क्या है? अब मैं जा रहा हूँ वहाँ, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग मेरे इंतजार में बड़े बड़े फूल का माला डालेंगे, लेकिन इमाम अहमद रजा अपने कंधे पे तुम्हारे पालकी को उठाएगा, तुम पालकी में बैठ के वहां जाओ। थोड़े देर के लिए सैयदों को के कांधा पे बैठ गए थे, तो आला हजरत ने कई किलोमीटर दूर तक सैयदों को अपने कंधे पे बैठा कर लेकर गए। सुभान अल्लाह, ये सुन्नत का तालीम है प्यारे। हकीकत माना में हमारे साथ में कुछ ऐसे उनके खानदान के जो यानी कुतुब आलम सरकार के खानदान के जो सैयद थे वे, वो हमारे जुलूस में थे। सुभान अल्लाह, उनका ताज़ीम भी किया, हाथों को भी बोसा दिया, और हमारा हर साल सैयदों के यानी सोहबत में हमारा जुलूस निकलता है। नबी का जुलूस सारे नबी के ही क़यादत में निकले। आज ये नाहदियात जो वहाबी जो बंदी से दोस्ती रखने वाले क्या कहते हैं, बोलो जिया मस्जिद में मौलाना सैयदों का ताज़ीम करता है। बोलो कभी आपने देखा मुझसे कभी सैयदों का खिलाफ करते हुए? अरे मेरा दादा पीर जो है वो खुद सैयद है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत खुद सैयद है। मादल्लाह, अगर हम सैयदों की ताज़ीम न करने वाले होते तो सैयदों का दामन कैसे होगा? ये सब यानी बहुतान तराशी बंद करो, नहीं तो दुनिया में चेहरा सुअर की तरह हो जाएगा, दुनिया में दलील हो जाओगे। या अपने नफ्स की खातिर तुम इमामों को बदनाम करते हो, है जो इमाम किसी का चाय पीना पसंद नहीं करता है, और तुम उस पर इल्जाम ठोकते हो, जबकि रात को दिन हराम खाली करते हो, हरामखोरी करते हो। लिहाजा ऐसा बकवास बंद करो, नहीं तो तबाह हो जाओगे। क्योंकि मोहतरम हज़रात, हम भी इंसान हैं, कब तक दुआ देते रहेंगे? कभी बदुआ निकल जाए तो सबसे पहली बात हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ और बदुआ जल्दी कबूल होगी। समझ में आई? तो इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी मदीने से बाहर जाते, पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ के जाते। सुभान अल्लाह, यानी बाहर परदेश से जब मस्जिद यानी अपने ये मदीने भी आते तो अपने मोहल्ले यानी मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ते। लेकिन आज मोहल्ले के मस्जिद, मोहल्ले के इमाम का कोई अहमियत न रही है ना। फजर पढ़ेंगे बादल तालाब, जोहर पढ़ेंगे कांकरिया तालाब, और असर पढ़ेंगे बीबी तालाब, मगरिब पढ़ेंगे न जाने कौन सा तालाब, ईसा पढ़ेंगे, हमारे के जब बोले ऐलान कर दो है। ये हाल है यहाँ के लोगों का। तो लिहाजा न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों तुम, फिर तुम्हारी दास्तान तक होगी दास्तानों में। अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और दुनिया के मुमिनीन को रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। नबी की मोहब्बत में जीने और नबी की मोहब्बत में मरने, आले नबी औलाद नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। कहने सुनने में अगर कहीं लफ्ज़ खता या गलतियाँ हो गई हो, किरामन कातिबीन के जरिए सही फरमाकर मुझे हमेशा हक कहने से बढ़कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद